Hello students, this is Kalyan Krishna, faculty in chemistry, and I am here to present the topic derivation of ideal gas equation. Let us proceed. Right, here we are going to derive the equation PV equal to nRT. तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर जाने से पहले I just want to tell you one thing, right? What basically is an ideal gas? What is an ideal gas? Right? बेसिकली गैस के अंदर क्या होते हैं? कोलिजन्स होते हैं. Yes or no? If you take a particular cylinder containing gas, naturally gas particles will be colliding. Those collisions, they are of two types, elastic collisions and inelastic collisions. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, right? If you take a particular cylinder containing gas sample, gas particles will be randomly moving here and there and they'll be colliding. एक दूसरे को collide करते हैं. When they are colliding, the collisions will be of two types, either elastic collisions or inelastic collisions. अगर गैस पार्टिकल्स के अंदर और गैस पार्टिकल्स के बीच में जो collisions होते हैं, if those collisions are perfectly elastic, right? If the collisions are perfectly elastic, then I will call the gas to be ideal gas, right? अगर गैस के अंदर जो भी collisions है, those collisions if they are perfectly elastic, then the gas is said to be ideal gas. वैसे भी एक और छोटी सी बात, if the collisions are perfectly elastic, then they will satisfy law of conservation of momentum and law of conservation of kinetic energy, right? Law of conservation of momentum, law of conservation of kinetic energy. चलो फिर से एक छोटा सा recap. I will take a cylinder containing gas. Gas particles will be randomly moving here and there and they will be colliding with each other, and among those collisions, if the collisions are elastic, that means if these two conditions are satisfied, then I will call that gas as ideal gas. और हम अक्सर बुक्स में ये देखते हैं कि आइडियल गैस ये होता है, आइडियल गैस वो होता है जो ये गैस ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. राइट? तो बेसिकली ये देखा गया है कि अगर गैस आइडियल है तो वो बॉयल्स लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, चार्ल्स लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाई गै-लुसाक्स लॉ एंड इट आल्सो सेटिस्फाइज एवोगाड्रोस लॉ, राइट? तो हम क्या करते हैं, इन चारों लॉस का फंडामेंटल जो फॉर्मूलाज है, दोज फॉर्मूलाज वी विल यूटिलाइज टू फाइनली डिराइव पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट? तो पहले ये देखते हैं कि बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता क्या है, राइट? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर बॉयल्स लॉ? तो आपने सुना होगा, राइट, कि P1 V1 is equal to P2 V2. What is Boyle's law? For a given mass of gas at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume, right? If pressure is inversely proportional to volume, P is inversely proportional to V. P is equal to K into 1 by V. तो PV value constant होता है, तो P1 V1 will be equal to P2 V2. Yes or no? Similarly, Charles law अगर देखते हैं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ V/T कांस्टेंट होता है, राइट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. यदि मैं गै-लुसाक्स लॉ के बारे में बात करता हूँ तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे P/T कांस्टेंट होता है. अगर P/T कांस्टेंट है तो P1/T1 शुड बी इक्वल टू P2/T2. फाइनली गै-लुसाक्स लॉ है, V इज प्रोपोर्शनल टू N. इसका हम बैलून का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं हवा भरते जाता हूँ बैलून बल्ज होता है, राइट? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो हियर V/N इज कांस्टेंट. तो V/N अगर कांस्टेंट है तो V1/N1 शुड बी इक्वल टू V2/N2, राइट? तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है P1 V1 इक्वल टू P2 V2. चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है V1/T1 इक्वल टू V2/T2. गै-लुसाक्स लॉ का फॉर्मूला है P1/T1 इक्वल टू P2/T2 एंड एवोगाड्रोस लॉ का फॉर्मूला है V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, राइट? तो चलो
ये चारों फॉर्मूलाज को यूज करते हुए मैं आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने वाला हूं। चलो चलते हैं आइडियल गैस डेरिवेशन के लिए। मान लो कि मैंने गैसियस सिस्टम ले लिया जिसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है और टेम्परेचर T1 है। और इसका कंडीशंस बाद में जो कुछ ऐसा बना है कि ये P जो है P1 जो है बना Px, V1 बना है Vx और N1 T1 कांस्टेंट। इसके बाद में गैस का सिस्टम में फिर चेंज आया है, मैंने ऐसा चेंज कर दिया इस बार कि Vx बनता है Vy, Vx becomes Vy and T1 becomes some Ty and Px and N1 are constant। इसके बाद में मैं ऐसा भी करता हूँ और एक चेंज लाता हूँ गैस के सिस्टम में, राइट। ये होगा P2, ये होगा T2। प्रेशर एंड टेम्परेचर को चेंज किया मैंने, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो कांस्टेंट। फाइनली मैंने सिस्टम को ऐसा किया कि इस बार मैंने वॉल्यूम को चेंज किया हूँ Vy से V2 को और नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया हूँ N1 से N2 को एंड दिस P2 एंड T2 आर कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ पे एक एक कंडीशन में एक एक लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक एक कंडीशन में एक एक लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। खासकर अगर मैं पहला वाला कंडीशन देखता हूं पहला वाला प्रोसेस देखता हूं, पहला प्रोसेस 1 में तो P1 चेंज हो रहा है, V1 चेंज हो रहा है, मगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कौन सा लॉ अप्लाई कर सकता हूँ बेटे? बॉयल्स लॉ। आई कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ। तो चलो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ बी लॉ, राइट, और ऐसा कुछ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम P1 V1 और यहाँ पे फाइनल प्रेशर जो है P2 नहीं है बेटा, Px है। तो यहाँ पे मैं Px लिखता हूँ और वॉल्यूम के जगह Vx, राइट। सो P1 V1 इज इक्वल टू Px Vx। बाद में चलो चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पे, प्रोसेस 2 पर ध्यान देते हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो वॉल्यूम बदल रहा है और टेम्परेचर बदल रहा है। वॉल्यूम इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग, मगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं है। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर बदलते हैं, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो मैं कौन सा लॉ अप्लाई कर सकता हूँ बेटे? चार्ल्स लॉ। आई कैन गो फॉर चार्ल्स लॉ। तो चलो लिखता हूँ सी लॉ, यदि कुछ ऐसा चार्ल्स लॉ, राइट। तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है बेटे? V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। चलो चलते हैं। यहाँ पे मेरा V1 वैल्यू है Vx, इधर मेरा वॉल्यूम 1 का वैल्यू क्या है बेटे? Vx। तो Vx बाई टेम्परेचर क्या है बेटे? T1 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम क्या है बेटे? इधर फाइनल वॉल्यूम Vy बाई फाइनल टेम्परेचर क्या है बेटे? Ty, राइट। Vx बाई T1 इज इक्वल टू Vy बाई Ty। आ रहा है समझ में? शायद समझ में आया ही होगा। ये मुझे प्रोसेस 1 से मिला है इक्वेशन, जहाँ की मैंने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया। ये जो है मुझे चार्ल्स लॉ से, यदि प्रोसेस 2 से मिला है, जहाँ मैं चार्ल्स लॉ अप्लाई किया था। तीसरा प्रोसेस ये है कि यहाँ पे देखो बेटे, ध्यान दो, प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो मैं क्या इधर गेलुसेक्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? सही है या नहीं, राइट। तो वी कैन अप्लाई गेलुसेक्स लॉ। और गेलुसेक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है बेटे? P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P बाई टी इज कांस्टेंट, दैट इज P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2। तो चलो यहाँ मेरा P1 क्या है बेटे? Px ही है, राइट। तो Px बाई मेरा टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर क्या है बेटा? थर्ड प्रोसेस का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? Ty। तो लिख देता हूँ Ty इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया भाई एट द एंड ऑफ द प्रोसेस? P2 हो गया और टेम्परेचर क्या हो गया भाई? T2, राइट। ये हुआ प्रोसेस 3, राइट, जहां मैंने गेलुसेक्स लॉ को अप्लाई किया था। यहाँ पे मैंने बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने गेलुसेक्स लॉ को अप्लाई किया। फाइनली अगर
एक ही और लॉ है जो बचा है, क्या है बेटे वो, एवोगाड्रोस लॉ। क्या है बेटे, एवोगाड्रोस लॉ। अगर हम ये फोर्थ प्रोसेस को देखते हैं तो हमें वही लगता है कि यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई होता है। एवोगाड्रोस लॉ कंडीशन में वेरिएबल्स कौन कौन से है बेटे, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम बदल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी बदल रहे हैं, यदि प्रेशर और टेम्परेचर वही के वही कांस्टेंट है। तो एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में कौन सा फॉर्मूला चलता है भाई, V प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि V by n इज कांस्टेंट, दैट इज V1 by n1 इज इक्वल टू V2 by n2। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल वॉल्यूम है Vy बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है n1 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम है V2 बाई फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है n2। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया बेटे, एवोगाड्रोस लॉ, और ये प्रोसेस हुआ प्रोसेस 4। शायद आप सब लोगों को ये 4 स्टेप समझ में आया ही होगा, राइट। एक छोटा सा रिकैप देता हूं बेटे। प्रेशर और वॉल्यूम बदल रहे हैं तो मुझे कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा बेटे, बॉयल्स लॉ। ये देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है बेटे, ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ। यहाँ पे अगर देखते हैं तो वॉल्यूम बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद नेक्स्ट प्रेशर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा गैलो-सिक्स लॉ। और फाइनली फोर्थ प्रोसेस में वॉल्यूम बदल रहा है और नंबर ऑफ मोल्स बदल रहा है, तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस लॉ, राइट। तो चारों लॉस को मैंने अप्लाई कर दिया, चार नए फॉर्मूला है मेरे सामने। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब LHS को एक जगह और इन सब RHS को एक जगह रखता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है, राइट। तो चलो LHS इधर क्या है बेटे, P1 V1, और इधर का LHS क्या है बेटे, Vx बाई T1। इधर का LHS क्या है बेटे, Px बाई Ty। इधर का LHS क्या है बेटे, Vy बाई N1, Vy बाई N1 इज इक्वल टू, बताओ बेटे इसका RHS क्या है, Px Vx इंटू Vy बाई Ty इंटू P2 बाई T2 इंटू V2 बाई N2। चलो हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पर Vx है, यहाँ पर भी Vx है, कैंसिल, राइट। यहाँ पर न्यूमरेटर में Vy, इधर भी न्यूमरेटर में Vy, कैंसिल। यहाँ पर डिनोमिनेटर में Ty, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में Ty, कैंसिल, राइट। यहाँ पे न्यूमरेटर में Px, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में Px। तो बचा क्या है बेटे, P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई N2 T2, राइट। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिखता हूं तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह अगर V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 है तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, आ रहा है ना समझ में। उसी तरह अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई N2 T2 हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि PV बाई NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट को कहा गया है बेटे कि दैट वाज इक्वल टू कैपिटल R, राइट। और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। ये कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है बेटे, राइट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R। तो चलो अगर मैं NT को उधर लेके चलता हूं तो ये हो गया PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, राइट। तो ऐसा हम डिराइव करते हैं PV इक्वल टू NRT। ये बहुत खास इक्वेशन है, अक्सर हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो या केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर हो या काइनेटिक्स, इसका यूज तो जरूर होगा ही होगा। बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है मगर बहुत यूजफुल इक्वेशन है, राइट। ताकि चारों इक्वेशंस को, चारों लॉस को सेटिस्फाई करता है, राइट। ये प्रोसेस को ओनली बॉयल्स कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये प्रोसेस को ओनली चार्ल्स कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मगर ये जो PV इक्वल टू NRT है ना, ये तो हर इक्वेशन को, हर पल में ये इक्वेशन जो है
ऑलवेज सेटिस्फाई होगा, राइट। तो ये हुआ डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। I think I with my lecture I have reached all your expectations very well, right? So thank you all very much for your cooperation. I hope the session went on very well. Thank you very much. Bye.